Welcome, welcome to all of my students. Now we are discussing exercise number 1.3 of ML Agarwal, application of calculus in commerce and economics. Question number 1, a manufacturer's total cost function is C equal to 1200 plus 20x plus x square. Find the average cost function, the marginal cost function, the marginal cost when 10 units are produced, and interpret it, and C11 and C10 and interpret it. So what will be the average cost function? AC equal to क्या होगा ना, एवरेज कॉस्ट मीन्स क्या, व्हाट डज इट मीन एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट for production, the cost per production, the total cost per production. That means total cost function divided by number of items. You have to find out function, and thus you have to write with function. The total cost function divided by number of items or production. Total cost functions C by X. Total cost function AC equal to क्या? So cost equal to here is the cost is given that 1220 plus x square. Write this and divided by x after splitting out. Okay, separating all terms, we get 1200 by x plus 20 plus x. That is the answer of average cost. That is the answer of average cost. The next question, the marginal cost function. Marginal cost function, what is the marginal cost function? Marginal cost function means the last item, ठीक है, for more one item, if you want to product for one item, then what will be your cost? That is the marginal cost. ठीक है, the marginal cost function MC equal to क्या? Now derivative of total cost function with respect to x. Derivative of total cost function with respect to x. That means derivative of c with respect to x. Total cost function c equal to कतो? C equal to 1200 20x plus x square. This is the cost. ठीक है, the total cost function. Therefore d of this by dx. ठीक है, now d of 1200, d of 20x and d of x square. 1200 का मीनिंग क्या होगा? 0. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. 20x का 20 इंटू एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव dx by dx, दैट मीन्स 1. 2x 20 इंटू 1 एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है ना? 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 minus 1. दैट मीन्स here is the formula. We know that since d dash of derivative of x to the power n with respect to x equal to have n x to the power n minus 1. This is the formula. This is the derivation, formula of derivation. Okay, now 20 into 1 plus 2x, that is 20 plus 2x. That is the answer, marginal cost function. Okay, thank you. Next question, Roman 3. Find the marginal cost when 10 units are produced and interpret. The marginal cost, Roman 3, marginal cost equal to 20 plus 2x. Okay, marginal cost, previously we find that marginal cost equal to 20 plus 2x. So the marginal cost at x equal to 10, we have to put at the place of x with 10, the 20 plus 2 into 10, that means 40. It indicates that rupees 40 are needed to increase the production from 10 to 11. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट बोला when 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गया था, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट निकालना होगा. जब 10 से 11 जाएगा तब हमारा कितना कॉस्ट लगेगा? कॉस्ट लगेगा कितना ना? ₹40 आर नीडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम 10 to 11 यूनिट्स. दैट इज द इंटरप्रिटेशन. ओके, the last question of the question 1,
the C11 minus C10 and interpret it. Find C11 minus C10 and interpret it. ताले क्या होगा ना C11 minus C10. C11 means तो C के क्या है, C का वैल्यू है 1200 प्लस 20x प्लस x का गिवन है, तो x का जगह में क्या है 11 को पुट करना है, 11 को पुट किया, देखो माइनस x का जगह में 10 पुट करना है, आंसर क्या मांगेगा 41 बाई कैलकुलेशन मिल रहा है, तो ₹41 है, तो ₹41 इट इंडिकेट्स द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नीडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम 10 to 11 यूनिट्स। मान एग्जैक्ट अमाउंट 10 से 11 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए हमारा एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा ₹41। मार्जिनल कॉस्ट कितना था, ठीक है, 10 का बाद जो प्रोडक्शन होगा 11 यूनिट 40 हुआ, उसका नियरर होगा यही C11 माइनस C10, लेकिन एग्जैक्ट ₹1 ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि थोड़ा तो फिक्स कॉस्ट आएगा ना, ठीक है, थोड़ा इसका नियरर होगा, यही याद रखना बस, ठीक है, ओके। फाइंड द total cost function for x units of a commodity as Cx equal to 1/3 x cube plus 3x square minus 16x plus 2. Find the marginal cost function and the average cost function. It is given that cost function equal to this and the marginal cost function MC equal to, we know that this is the formula, the key derivative of cost function with respect to x. So d of cost function which is given into the questions and by dx, सेपरेटली इसका डेरिवेटिव क्या होगा ना 1/3 डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 1/3 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 3 माइनस 16 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ 2। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा ना x टू द n का फॉर्मूला है, ठीक है, x टू द n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द n माइनस 1, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स टू द 3 माइनस 1, दैट मीन्स 2, तो हमारा 3x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स टू द पावर 1, 2 माइनस 1 मीन्स 1, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का रेस्पेक्ट में 1 होगा, और d2 बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता है, उसका 0 होता है, तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 विल बी द आंसर, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट फंक्शन व्हाट इज एवरेज? एवरेज कॉस्ट फंक्शन को पर यूनिट में कितना कॉस्ट फंक्शन होगा, कितना कॉस्ट होगा, वही हमारा एवरेज है। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू AC, ठीक है, क्या है एवरेज कॉस्ट फंक्शन, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट CX बाई एक्स, नंबर ऑफ आइटम्स आउटपुट। तो CX बाई एक्स मीन्स CX लिखो, CX यहाँ पर गिवन है, टोटल कॉस्ट का क्वेश्चन में दिया मालूम है, ये वाला टोटल CX है, तो CX लिख दो बाई एक्स, अलग अलग करके डिवाइड कर लो, सेपरेट करने के बाद आंसर मिल रहा है 1/3 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 16 प्लस 2 बाई एक्स, दैट इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट फंक्शन CX ऑफ ए फॉर्म is given by CX equal to 2x square minus 4x plus 5. This is the cost function or total cost, both are same. Find when unit will be used, then it will be cost, total cost. When CX equal to 2x square minus 4x plus 5, then it will be the cost function. Find the average cost and the marginal cost when x equal to 10. The average cost when x equal to 10 will be, क्या एवरेज कॉस्ट कितना होता है ना CX टोटल कॉस्ट बाई नंबर ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट में कितना टोटल कॉस्ट हो रहा है, वही एवरेज कॉस्ट है। CX क्या है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बाई एक्स, दैट मीन्स 2x स्क्वायर बाई एक्स माइनस 4x बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स करने से मिला क्या, यही होगा 2x माइनस 4 प्लस 5 बाई एक्स, देन वी हैव टू पुट एट द प्लेस ऑफ x बाई 10 पुट कर दो, तो 2 इंटू 10 4 प्लस 5 बाई 10 बाई कैलकुलेशन 16.5, दिस इज द एवरेज कॉस्ट, अर्थात पर प्रोडक्शन में हमारा एवरेज कॉस्ट यही होगा 16.5। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 10, चलो व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट, वी नो दैट द मार्जिनल कॉस्ट क्या है ना DC बाई DX, क्यों ना डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करने से क्या मिलेगा, हमारा टोटल कॉस्ट क्या है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, बस लिख दिया, उसके बाद अलग अलग करके डेरिवेटिव करो,
2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू की फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा क्या, तो कांस्टेंट आगे हो जाता है, ये पर एक स्टेप क्या होगा ना, 2 इंटू 2x⁻² माइनस 4 इंटू 1 प्लस 0, उसके बाद ए स्टेप होगा, बस यही होगा, समझे ना। 2 इंटू 2x⁻1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस इसका डेरिवेटिव 0 होगा, बस ये आएगा। उसके बाद ये आ रहा है 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। here is the formula since d dash of derivative of x⁻n इक्वल टू होगा n x⁻n माइनस 1, बस यही होगा, यही हमारा डेरिवेटिव का रूल। तो मिल रहा है क्या 36। तो मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 10, x का जगह में देखो डेरिवेटिव मार्जिनल कॉस्ट क्या है 4x माइनस 4 प्लस 0 एंड देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x 10, तो इसका जगह 10 पुट में 40 माइनस 4 36, मार्जिनल कॉस्ट विल बी 36। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर ए प्रोडक्शन इज गिवन बाय दिस फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फॉर व्हिच MC इक्वल टू AC, MC इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना प्रोडक्शन करने के बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट एवं एवरेज कॉस्ट सेम हो जाएगा, कितना प्रोडक्शन करने के बाद, एट व्हाट प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट विल बी सेम विथ एवरेज कॉस्ट। ये क्वेश्चन आया है ISC 2019 में। तो पहले क्या करना है, कॉस्ट फंक्शन जो दिया वो लिखा, मार्जिनल कॉस्ट क्या है ना, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x वेयर द नंबर ऑफ प्रोडक्शन x यूनिट्स। तो सी क्या है, सी तो यही है, सी को पुट करो, उसके बाद अलग अलग करके डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करने से क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 इंटू x⁻² माइनस 1, तो 3/4 2 इंटू x⁻² माइनस 1, और यहाँ पर 7 इंटू एक्स का डेरिवेटिव एक्स का रेस्पेक्ट में 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पर कौन फार्मूला यूज़ किया, सिंस क्या है डेरिवेटिव ऑफ x⁻n क्या होगा ना n इंटू x⁻n माइनस 1, बस कैलकुलेशन करके क्या मिल रहा है 3x/2 माइनस 7, दैट मीन्स 1। क्लियर। ये एक नंबर इक्वेशन दे दो, मार्जिनल कॉस्ट मिल रहा है यही। अब एवरेज कॉस्ट कितना होगा, एवरेज कॉस्ट क्या किसको बोलता है, एवरेज कॉस्ट मीन्स हर आइटम में हमारा कितना कॉस्ट होगा, हर आइटम में हमारा कॉस्ट कितना कॉस्ट होगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना होगा हर आइटम में, हमारा प्रोडक्शन जब x यूनिट होगा तो एक एक यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट कितना होगा, वही हमारा एवरेज कॉस्ट है। नहीं, यहाँ पर C नहीं होगा, काटो, ये होगा x, ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा CX/X, दैट मीन्स CX क्या है टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो हमको तो पहले ही बोल दिया, ये क्वेश्चन में दे दिया था, वही लिखा बाई x, अलग अलग करके डिवाइड करने से मिलेगा 3x/4 माइनस 7 प्लस 27/x, दैट इज द एवरेज कॉस्ट, मिल गया, यही मिल गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है क्या, जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोडक्शन एट विच MC विल बी इक्वल टू AC, माने मस्ट मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट कितना है, यही है, एवरेज कॉस्ट क्या है, यही है, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो दोनों को इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, दोनों को इक्वल कर दो। करने के बाद देखो सॉल्व बाय सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू द क्या, बाय सॉल्विंग इट अकॉर्डिंग टू द क्लास 9 नॉलेज, ठीक है, नॉलेज ऑफ क्लास 9 वी हैव टू सॉल्व इट। ये 3x/2, इसको देखो -7 कैंसिल हो जा रहा है, इधर -7 के ले आओ +7 हो जाएगा, +7 से -1 काट जाएगा, तो यहाँ पर क्या है 3x/4, बस इसको ऐड कर दो, एलसीएम क्या होगा 4x, और यहाँ पर क्या होगा 4x को 4 से डिवाइड करने से रिजल्ट मिलता है x के साथ ऊपर मल्टी करने से 3x² प्लस इसको डिवाइड करने से 4 मिलता है, 4 के साथ 27 को मल्टी करने से 100, बस सिंगल फ्रैक्शन हो गया, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, इसको ब्रैकेट में लिखो, हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 का साथ इसका साथ इसका मल्टी करने के बाद सब लाइन लिनियर आ गया, सब x को एक तरफ रखो, रखा है 6x² = 216, ठीक है,
आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 216/6, 6 इंटू में है, यहाँ पर डिवाइड होगा तो एक्स इक्वल टू 36, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 6। एक्स क्या मिला? 6 मिला। एक्स को तो पॉजिटिव ही लेना है, यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है? आंसर मिल रहा है +-6, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 6। क्यों ना? ये तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन तो कभी नेगेटिव नहीं होता है, +6। समझे ना? समझे? और एनी रूट में क्या आंसर मिलता है? +-, लेकिन हमको लेना है +6, कारण प्रोडक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन इज 6 यूनिट्स व्हेन एमसी इक्वल टू एसी। जब हमारा 6 यूनिट प्रोडक्शन हो जाएगा तो अब हमारा मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट मस्ट बी सेम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं द एवरेज कॉस्ट फंक्शन फॉर x यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज एवरेज फॉर दिस, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट एंड सो दैट द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज गिवन बाय दिस। ठीक है, क्या बोल रहा है? द एवरेज कॉस्ट फंक्शन बोल दिया, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट एंड सो दैट द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, not only marginal cost, marginal average cost is given by this. So here the number of production is x units, ये मालूम है। Here is given that marginal cost equal to, we know that marginal cost equal to की derivative of cost function divided by with respect to x. Here c is the cost function, c but cx is the cost function. So given ac is the average cost, ये क्या है? एवरेज कॉस्ट है, ये तो गिवन है। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना होगा? एवरेज कॉस्ट मीनिंग एक एक आइटम के लिए एक कॉस्ट है, तो नंबर ऑफ आइटम से मल्टी कर दो, तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट हमारा आइटम कितना है? x यूनिट। आइटम क्या है? x यूनिट्स। तो एक एवरेज कॉस्ट को 1 से मल्टी करने से पूरा टोटल कॉस्ट मिल गया। टोटल कॉस्ट कैसे मिलता था? एवरेज कॉस्ट कैसे मिलता था? टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करने से, क्योंकि ना टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ करने से हमारा एवरेज कॉस्ट मिलता है। तो टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा? टोटल कॉस्ट इक्वल टू मिलेगा क्या? देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इनटू एक्स, बस यही होगा। सही किया, एवरेज कॉस्ट इन नंबर ऑफ टोटल आइटम्स, एक्स क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स, बस हो गया। तो कॉस्ट फंक्शन मिल गया। जब कॉस्ट फंक्शन मिल गया तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे मिलेगा? ये तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बस डेरिवेटिव करो। सेम प्रोसेस पहले जो किया, इसका डेरिवेटिव करने से मिलेगा 3x², इसका करने से 2x, बाहर 3 है, 3 का साथ मल्टी हो जाएगा। यहाँ पर -7 × 1 ए कॉन्स्टेंट 0, बस x² + 6 + -7, यही है मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है, सो दैट द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज गिवन बाय दिस। ये वाला क्या है? मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट हमको कैसे मिलेगा? मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, सुनो, जब मार्जिनल निकलना होगा ना, मार्जिनल का बात ही है डेरिवेटिव करना है। किसको? जिसको मार्जिनल चाहिए। मार्जिनल को छोड़ो तो क्या है? मार्जिनल ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो मैंने तुमको क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट होगा। तो डी ऑफ ए सी एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट को डेरिवेटिव करो एक्स का रिस्पेक्ट में। एवरेज कॉस्ट तो पहले ही निकल गया था, ये तो एवरेज कॉस्ट तो बोल दिया था क्वेश्चन। एवरेज कॉस्ट कितना है? ये जो एवरेज कॉस्ट बोल दिया, देख लो। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा? लिख दो dx, बस डेरिवेटिव करने के बाद यही मिल रहा है। यही हमारा रोमन 2 है, और टोटल कॉस्ट है हमारा रोमन 1 मार्क किया। रोमन मार्क करने का जरूरी है, बाद में सोचेगा। ठीक है, बस हो गया। और ये क्या है? मार्जिनल एवरेज कॉस्ट मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो 1/x है, 1/x का डेरिवेटिव कैसे हो रहा है यहाँ पर दिख रहा है। 1/x मीन्स x⁻⁻1 है। अब x⁻n का फॉर्मूले में चले जाओ, तो क्या होगा? n × x⁻n−1, तो हमने -1 × x⁻n−1, तो क्या होगा? -1 × x⁻, क्या है ये? डिवाइड साइन नहीं है, फॉल्स है, मतलब -1 × x⁻−2 है। तो x⁻−2 इसको नीचे ले आओ इंडिसेस बाई एक्सपोनेंट का फॉर्म में, तो -1/x² होता है। ठीक है, आज जो फॉर्मूला मदर फार्मूला जो यूज़ है वो लिख दिया।
ताहले इसीलिए यहाँ पर क्या होगा 16/x²। ठीक है, ताहले मार्जिनल एवरेज कॉस्ट हमको मिल गया 2 नंबर। ठीक है, अब क्या बोला हमको, जो क्वेश्चन बोला जो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इसका साथ सेम है ये दिखाना है। ताहले मार्जिनल कॉस्ट हमें निकला, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट हमारा यही निकला 2 नंबर। आप जो क्वेश्चन में दे दिया मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, हम इसको क्या करेगा, इसको देखना है जो ए कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट जो निकल रहा है ए सेम आ रहा है कि नहीं, वही देखना है। ठीक है, यहाँ पर गिवन क्या है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट गिवन एम मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू यही है। ठीक है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इक्वल टू यही है। तो आप क्या है ये दे दिया, इसको कैलकुलेशन करो। तो मार्जिनल कॉस्ट हमको मालूम है, तो x इंटू मार्जिनल कॉस्ट लिख दिया, फिर पहले हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल गया। कहाँ निकला, देखो ये वाला मार्जिनल कॉस्ट पहले निकल गया। तो मार्जिनल कॉस्ट लिखो, और क्या है टोटल कॉस्ट, पहले हमारा निकला टोटल कॉस्ट क्या यही था, तो टोटल कॉस्ट लिख दिया यहाँ पर बाई x²। इसको बाई कैलकुलेशन करने के बाद देखो आता है क्या ना 2x/3 + 3 - 16/x²। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सेम सिंपल फॉर्म है। तो इसको क्या है, एक क्यूब है 6x और -7x + 7x काट जाएगा, यहाँ पर माइनस हल्का सा इंटू होगा, माइनस इंटू प्लस 1/3 x³ माइनस 1/3 x³ माइनस प्लस माइनस 3x² माइनस प्लस 7x माइनस प्लस माइनस 16। दोनों काट दो, कैंसिल करने के बाद जो मिलेगा यही मिलेगा, हो गया। आप क्या है अलग अलग करके सेपरेट करके डिवाइड कर लो, करने के बाद यही मिल रहा है क्या हमारा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट मिल गया। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट ये 3 नंबर दे दियो। ठीक है, हो गया। और आप क्या होगा, देयरफॉर बाई 2 और 3, 2 कौन है, ये वाला 2 है, और 3 कौन है, यही है। दोनों इक्वेशन देखो क्या है, सेम है, इसीलिए द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इक्वल टू दिस प्रूफ्ड। पर ओरिजिनल मार्जिनल एवरेज कॉस्ट हम पहले निकला यही मिलेगा, और वही किताब में जो मार्जिनल कॉस्ट का बोल दिया फार्मूला, वो फार्मूला को हम इस ऐसे मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट अप्लाई करने के बाद सेम मिल रहा है। ये जो फिगर है और ये जो फिगर है सेम आ रहा है। हमारा मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेटिव मार्जिनल कॉस्ट और किताब में गिवन मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेशन करके सेम आ रहा है। सेम आने से ये प्रूव हो गया द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट विल बी दिस इज द प्रूफ। क्लियर, थैंक यू। Please subscribe and comment us. Online and offline classes of academic and competitive examinations of various entrance and services are available. If you want to join with us, you can communicate with us through our mobile number or email address or comment.